پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا اور اس میں ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں یا ڈومیسٹک وائلنس سے ریلیٹڈ ایک ایسا بل منظور ہوا جو کہ سب کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر خاصا زیر بحث بھی ہے. تو وہ بل کیا ہے صدف؟ آپ وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین؟ اچھا، یہ بل جو ہے اس کے بارے میں پہلے بھی ہماری بات ہوتی رہی ہے اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو کہ پہلے ان چیزوں کو وائلنس نہیں سمجھا جاتا تھا. یعنی کہ سماجی تحفظ سے متعلق بڑا اہم قانون ہے. ڈومیسٹک وائلنس بل 2025 منظور کر لیا گیا ہے، جس کے تحت بیوی کو سٹاک کرنا، طلاق یا دوسری شادی کی دھمکی دینا، گالی دینا یا جذباتی اور نفسیاتی طور پر، اس پہ ایک اور بھی پہلو تھا، فائنینشلی طور پر بھی پریشان کرنا جرم قرار دیا گیا ہے. قانون کا اطلاق نہ صرف بیوی اور بچوں پر ہوگا بلکہ بزرگ افراد، معذور افراد، لے پالک، ٹرانسجینڈر اور گھر میں رہنے والے دیگر افراد پر بھی ہوگا. اب مرتکب افراد کو 3 سال تک، یعنی کہ اگر جو اس تمام تر قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، 3 سال تک قید، 1 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے. قانون میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بیوی کو مرضی کے بغیر گھر میں دیگر افراد کے ساتھ رکھنا، خاندان کے افراد کی پرائیویسی یا عزت نفس مجروح کرنا بھی قابل سزا جرم ہوگا. تو جو اس کہتے ہیں نا بانی ہے اس بل کی، ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. اور پہلے بھی ہماری اس حوالے سے بات ہو رہی تھی، ذرا کچھ مشکلات آ رہی تھی اس بل کے اپروول میں، لیکن اب اس بل کو پیش کر دیا گیا. پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں ممبر نیشنل اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ شرمیلا، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا ڈومیسٹک وائلنس بل 2000 ایکٹ کیا کیا تبدیلیوں کے ساتھ اب یہ منظور ہو گیا ہے، تو کیا آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں گی؟ جی بہت شکریہ صدف. دیکھیے جی، بل یہ پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو کے صدر مملکت کے پاس ارسال ہوا تھا. اس پہ چند ایک اعتراضات تھے جس پہ صدر نے اعتراضات اٹھائے تھے، اور ان اعتراضات کے بعد یہ بل واپس قومی اسمبلی کو کر دیا گیا تھا. اس کے بعد جب پچھلے دنوں پارلیمان کا مشترکہ اجلاس ہوا تو اس میں کچھ امینڈمنٹس جو صدر زرداری صاحب کی طرف سے آئی تھی ان کو انکارپوریٹ کر کے دونوں پارلیمان نے مشترکہ اجلاس میں اس بل کو پاس کیا. اب یہاں پر میں تھوڑی سی وضاحت کرتی چلوں، کیونکہ پچھلے 2-4 دن سے میں سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہی ہوں اور سن رہی ہوں جس کا تعلق اس بل سے ہرگز نہیں ہے. بالخصوص کچھ ایسے پڑھے لکھے جرنلسٹ جن کی اپنی بیٹی اور بیوی بھی جو جرنلزم اور شوبز کے جو میڈیم ہے اس سے تعلق رکھتی ہیں، انہوں نے اس بل کی کافی تضحیق کی اور مذاق اڑایا اور کچھ ایسی باتیں کی جو اس بل میں نہیں ہیں. میری گزارش ان تمام حضرات سے جو اس بل پہ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں، اور بالکل کرنا چاہیے بیکاز یہ بہت اہم بل ہے، اور یہ بالخصوص صرف خواتین کے لیے نہیں ہے، یہ ان مرد حضرات کے لیے بھی ہے جو اس کو بلا پڑھے بلا سمجھے اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ اگر اس بل کو پڑھ لیں اور اس کے بعد تبصرہ کریں تاکہ لوگوں تک بھی صحیح بات پہنچے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا، کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہماری نظر سے بھی گزری، اور یہاں پر آپ کسی صحافی کا ذکر کر رہی ہیں. یہاں پر میں آپ کی پارٹی کی جو ممبر قومی اسمبلی ہیں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. ان سے یہ سوال پوچھا گیا تو ان کو اس بل کے بارے میں کیا پتا تھا یا ان کے کیا تاثرات تھے، یہ ہم آپ کو اور ناظرین کو دکھاتے ہیں. یہ شادی شدہ لوگ اب کالی اینکیں پہن کے گھر جایا کریں، کیا کریں؟ ہاں، کالی اینکیں جو گھوڑوں کے سائڈ پہ لگتے ہیں، دو کیا کہتے ہیں انہیں، وہ اس طرح کی کوئی چیز پہنے تو نظر نہ پڑے زیادہ. میم اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ ایک جو مرد ہوگا وہ آگے کیا کہے گا یا ایک عورت کیا کہے گی کہ اس مرد نے کس طرح گھورا ہے؟ دیکھیے جس نے بنایا بل اس سے مجھے یہ گھورنا ویسے بھی ایک نامناسب بات ہے، لیکن اس بل کے بانی کون ہے میڈم؟ اس بل کے بانی کون ہے؟ لیکن میم ہماری سوسائٹی میں جس طرح علماء کرام تنقید کر رہے ہیں کہ چھوٹے موٹے گھروں میں مسائل ہوتے ہیں، اس طرح کوئی بھی عورت پہنچ جائے گی کہ ایسے میرے خیال میں خواتین نہیں پہنچیں گی مذاق سے الگ. لیکن میرا الگ یہ کیسے چلتا ہے، بل تو بن جاتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے یہ سوال ہے. یہ بہت بڑا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت قوم کے بڑے مسائل ہیں. مردوں کے لیے کوئی آپ رائے دینا چاہیں گی؟ آپ میل پارلیمنٹرین بھی بیٹھے ہیں، ان سے کہیں مردوں کے حق میں کوئی بل ایسا لائیں کہ وہ اگر خواتین ہراساں کریں یا انہیں گھوریں ان کی بیکوار، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں. میل پارلیمنٹیرین اور میل سارے آج کل ڈرے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں بولیں گے. ان سے پوچھیں یہ بولیں گے. تو شرمیلا، ایک بڑا سیریس بل اب جب آپ کی پارلیمنٹیرین کو نہیں معلوم، قانون سازی کے عمل میں جو شامل ہیں ان کو نہیں معلوم، تو ہم عام پبلک سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آئی تھنک تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. سٹاکنگ سے یا گھورنے سے کیا مراد ہے یہاں پر، وہ بھی بیوی کو؟
थैंक यू सो मच सदफ फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. पहली बात तो है ये है कि स्टॉकिंग का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि घूरना. स्टॉकिंग का मतलब है अगर कोई शख्स जो आपके घर में रहता है, छुपा वो आपका खाविंद हो, आपका भाई हो, आपका बहनोई हो, या एक औरत मर्द के हवाले से अगर कोई किसी का ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है. स्टॉकिंग का मतलब ये है कि वो आपको हर जगह फॉलो कर रहे हैं, आपको अंदर कोएशन रख रहे हैं, आपको अंदर प्रेशर रख रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, आपको वहाँ आपका पीछा कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, वहाँ आपके ऊपर नजर रख रहे हैं. एक कंसेक्यूटिव, एक कंसेसिव ऑब्सेसिव बिहेवियर जो जहनी दबाव का शिकार हो सकता है किसी भी शख्स पे, और जो उसको एक तकलीफ में और एक खौफ में रखे अपने ही घर के अंदर. इसका मतलब ये है. इसका मतलब हरगिज नहीं है जो मजाक बनाया गया है. और मुझे दुख होता है इस बात का कि खवातीन, आप एक खातून हैं और साइम की भी माँ बहन और बीवी होगी. खवातीन किस किस मराहिल से गुजरती हैं, किस किस तकलीफ से गुजरती हैं मुख्तलिफ अपनी ज़िंदगी के अंदर, मुख्तलिफ इंटीमेट रिलेशंस के अंदर. ये कोई मजाक नहीं है, इसकी तस्दीक नहीं करनी चाहिए. और अभी जब बात शर्मिला, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अनएनफोर्सेबल होगा. ये पता कैसे लगेगा जी स्टॉकिंग हो रही है और जो है स्टॉकिंग इस वजह से की जा रही है? बहुत सारी इसमें चीजें. मैं इसको जरा सा कंप्लीट करूं. और एक जो बात अभी की गई ना कि मर्द हजरात भी अपने लिए बिल हैं, तो ये मर्द हजरात के लिए भी बिल है. ये उन बूढ़े माँ बाप के लिए भी बिल है जिनके बच्चे उनके साथ गैर मुनासिब रवैया रखते हैं, जो उनके अखराजात नहीं उठाते, जो उनके मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं उठाते, या जो घर में बहू है वो किसी अपने सास ससुर की तज़हीक करती है. ये उनके लिए भी है. दिस बिल इज नॉट कन्फाइंड टू जस्ट वुमेन. यस, हस्बैंड्स, अगर कोई खातून जो है या कोई बीवी जो है या घर में कोई रहने वाली कोई मर्द एक मर्द के साथ बदतमीजी करता है या फिजिकल या वर्बल अब्यूज करता है, ये उसके लिए भी है. हमने इसको सिर्फ खवातीन के लिए कन्फाइन नहीं किया. और लेट मी टेल यू, घूरने पे इस बिल में कहीं नहीं लिखा कि घूरने पे सजा है. ये अच्छा, और मजे की बात ये है, मुझे लगता है ये सारे वो हजरात हैं जो शायद अपने घर में इस किस्म का रवैया रखते आए हैं और शायद इस बिल की वजह से उनको खौफ और हरास का सामना अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने इसको क्रिमिनलाइज किया है. पहले तो ये होता था ना कि बीवी को गाली दे दो, बीवी को ताने दो कि वो हामला नहीं हो पा रही, या बीवी को ये कहो कि तुम बच्चा नहीं पैदा कर पाओगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, दूसरी बीवी को ले आऊंगा. ये थ्रेट होती थी, मुसलसल बीवी को थ्रेट किया जाता था. और ना सिर्फ हस्बैंड की तरफ से बल्कि सास ससुर की तरफ से, दीगर लोगों की तरफ से. अब इसको हमने क्रिमिनलाइज किया है. एक औरत एक शख्सियत है, एक जीती जागती जिंदगी है. आप उसको इस तरीके से अलाउ मी प्लीज, अभी जिस तरह ये बात की जा रही है, ये जिस तरह बात की जा रही है, जो घूरने वाला मामला है, जो स्टेरिंग वाला जो पॉइंट है इसके अंदर, जिसमें आपकी फेलो पार्लियामेंटेरियन भी ये कह रही थी कि वो फिर काले चश्मे लगा के मर्द हजरात घर चले जाएं, या जो घोड़े को लगाते हैं ऐसे करके जिससे उसको लेफ्ट राइट नजर नहीं आता, ब्लाइंड्स लगा के घर चले जाएं. इसको भी जरा एलैबोरेट करें, थोड़ा सा वेग है ये पॉइंट. देखिए साइम, पहली बात तो ये बिल मेरे सामने पड़ा हुआ है और मैं इसलिए लेके बैठी हूँ कि इस बिल में कहीं भी घूरने पे या स्टेयरिंग के ऊपर सजा नहीं है. देयर इज, इसमें किसी प्रोवाइजो के अंदर ये नहीं है. सो जो अगर इसके ऊपर इस किस्म की बात कर रहा है उसने बिल नहीं पढ़ा है. मैं बार बार आपसे यही दोहरा रही हूँ कि बात, वो जो चाइनीज विस्पर नहीं होता है, किसी ने बात कही, किसी ने पकड़ी और उसको, इस बिल की देखिए, प्लीज टेक दिस सीरियसली. इस मुल्क में जेंडर बेस्ड वायलेंस बेतहाशा है. अगर मैं आपके सामने डेटा रखूं तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे. एंड आई एम श्योर यू नो मोस्ट ऑफ इट. आप एक पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं. सदफ यहाँ पर बैठी हुई हैं, सदफ को मालूम है हम खवातीन यहाँ इसी मुल्क में रहती हैं ना, कि हमने लेफ्ट राइट एंड सेंटर केसेस नहीं देखे, अपने इर्द गिर्द हमने ऐसे केसेस नहीं देखे जो खवातीन के साथ घरेलू माहौल के अंदर क्या क्या ज्यादतियां नहीं होती हैं. और सबसे अहम चीज ये है कि जनाब, इस बिल के अंदर आपको वो प्रोटेक्शन दी गई है, आपको वो प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से आप, और कोई एक तजलील पे या किसी एक हरासमेंट के ऊपर तो केस फाइल करने नहीं जाता ना. ये जब मुसलसल होता रहता है और साल बसाल गुजर जाते हैं, फिर कोई जाके ये स्टेप उठाता है ना. ये कहना कि जनाब ये तो बिल तलाके करवा देगा या लोग रोज अदालत, रोज कौन अदालत पहुंचता है? कितनी हिम्मत होती है आज की खातून के अंदर, कितनी हिम्मत है? सदफ आप मुझे बताएं कि जी एक गाली के ऊपर या एक डराव धमकाव के ऊपर वो अदालत पहुंच जाए. काश कि ऐसा होता और कोई एक औरत उठ के खड़ी हो जाए और अपने लिए आवाज उठाए, तो शायद
लाखों औरतों की हिम्मत जो है वो बढ़ जाए। बिल्कुल, और मुआशरे में इन सबसे अहम चीज़ों चीज से ये है, जी देखिए जहां पर बात की इम्प्लीमेंटेशन की, मैं शर्मिला, इसलिए हाँ, मैं आपसे इसी से जल्दी जुड़ा जल्दी सवाल कर रही हूँ कि सवाल ये कि इन्फोर्समेंट हमारे यहाँ नहीं हो पाती है, कानून बन जाते हैं, हम आम केसेस में देखते हैं सालों लग जाते हैं किसी को ये डोमेस्टिक इश्यूज़ को ही लेकर इनके फैसले आने में। यहाँ पर कैसे शवाहिद बड़े मैटर करते हैं। अब जो ख़ास तौर पर अगर हम स्टॉकिंग की बात करें या फिर हम उस चीज़ की बात करें जी कि आप मजबूरन किसी को, अगर वो खातून नहीं रहना चाहती आपकी फैमिली के साथ, आप ज़बरदस्ती उसे नहीं रख सकते, तो इन चीज़ों के प्रूफ कैसे होंगे और फैसले कब तक आएंगे, फिर यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है? देखिए स्टॉकिंग इज़ अ वेरी सीरियस इशू, और अगर आप देखें दुनिया के जो ममालिक हैं, बिलखुसूस जो इस्लामिक ममालिक हैं लाइक टर्की एंड मलेशिया, उन्होंने इसको क्रिमिनलाइज किया बिकॉज स्टॉकिंग कैन एस्केलेट इनटू फिजिकल वायलेंस एंड लीड टू डेथ, कभी कभार कत्ल भी हो जाता है। ये इस्लामाबाद के अंदर सारा इमाम केस था, जो अमेरिकन नेशनल थी, जो यहाँ पर शादी करके आई थी, और वो बड़ा फेमस केस हुआ, जिनकी मियाँ को फिर इवेंचुअली सजाए मौत हुई है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर स्टॉकिंग, ये ऑब्सेसिव बिहेवियर लेके ये कंटिन्यूसली होता रहा, और इसको खवातीन ने या घर की जो औरत है या जो बीवी है उसने उसको दरगुजर करते करते इस हद तक वो ऑब्सेसिव बिहेवियर हो गया कि फिर वो फिजिकल वायलेंस पे आ गया। इवेंचुअली फिर उस जो बीवी थी उसको डम्बेल से मार मार के उसका कत्ल कर दिया गया। ये इश्यूज हैं, प्लीज रियलाइज के माशरे के ये अहम इश्यूज हैं, दीज नीड टू बी क्रिमिनलाइज्ड। उसका मर्डर हो गया। बात ये है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। 100% कोई भी कानून किसी भी मुल्क में नहीं इम्प्लीमेंट होता। शायद हमारे मुल्क के अंदर इसमें ज्यादा फुकदान है, लेकिन इसका मतलब क्या ये कि हम कानून बनाना छोड़ दें? आपके पास कत्ल का कानून है, क्या इस मुल्क में कत्ल नहीं हो रहे? आपके पास ट्रैफिक का कानून है, इस मुल्क में क्या एक्सीडेंट्स नहीं हो रहे? इसका मतलब है आप कानून रद्दी की टोकरी में होना चाहिए, लेकिन ये मेरी और आपकी गलती नहीं है, फिर ये अदालतों की गलती है। आई एम अ लेजिस्लेटर, मेरा काम है लेजिस्लेट करना। मैं अगर यहाँ कौमी असेंबली में मेरी जमात ने मुझे भेजा है, और मेरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी बानी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, जो ख़वातीन के इश्यूज़ पे और ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर, अगर मैं उस जमात से हूँ, मेरी जमात ऐसे कानून साजी करती है जो इस मुल्क की मार्जिनलाइज्ड और बिलखुसूस ख़वातीन और बच्चों के लिए कानून साजी करने में पहल करती है, तो हम ये कानून बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि इस कानून को किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो। लेकिन आगे जाके सजा या जजा का तयन करना तो अदालतों का है। पीपल्स पार्टी या पार्लियामेंट तो अदालत लगा राइट, के और नहीं बैठ यही सकती इम्पोर्टेंट है। शर्मिला साहिबा, इसमें लास्टली तो, आपसे इसमें तो मैं आपको साइम और सदफ आपसे गुजारिश करूंगी कि आप जज साहिबान को भी अपने शो के ऊपर लेकर आए और पूछें कि जब पार्लियामेंटेरियंस कानून बना के भेजते हैं और पुलिस काम भी करती है, एविडेंस भी देती है, फिर आप क्यों उसके ऊपर सजा लॉ नहीं करते? इन्फोर्समेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। शर्मिला साहिबा, मुझे लास्टली एक बात बता दें बस कि आप अभी हाल ही में एक रेप केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पाइट हैविंग द डीएनए एविडेंस उसको ओवरटर्न कर दिया फॉर्निकेशन केस के अंदर, क्योंकि कहा कि जी वो जिस्म के ऊपर जबरदस्ती के निशान नहीं थे, तो बाय कंसेंट हुआ। तो अगर इस किस्म के फैसले आएंगे सदफ, तो आप मुझे बताइए कि मैं और आप क्या इंप्लीमेंट करा सकेंगे? अग्रीड। शर्मिला साहिबा, अब ये बता दें, आपने स्टॉकिंग वाला पार्ट बड़े अच्छे से एलैबोरेट कर दिया। हमने हाल ही में देखा इस्लामाबाद में सना यूसुफ केस भी था, जिसमें फैसलाबाद से लड़का उसको स्टॉक करते करते उसे घर के बाहर पहुंच गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वायलेंस, ज़्यादती और जो मैरिटल कवानीन है, ये तो ऑलरेडी मौजूद थे। व्हाट्स न्यू एंड व्हाट्स डिफरेंट इन दिस बिल? क्या ये स्टॉकिंग वाला पार्ट जो ऐड हुआ है ये न्यू है, या फिर इसको जो एक्सपैंड किया गया है मर्द हजरात के ऊपर भी, और जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे, जो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर भी इसको एक्सपैंड किया गया है, ये चीज़ न्यू है? देखिए जी, इस बिल के अंदर जो एक ख़ास चीज़ है वो ये, तो ये ख़वातीन तक महदूद नहीं है। इसमें आपके ट्रांसजेंडर भी आ जाते हैं, इसमें आपके स्पेशली एबल्ड बच्चे भी आ जाते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे भी आ जाते हैं, वो हजरात जो आपके घर में रहते हैं, और एनी वल्नरेबल पर्सन, मेरा बाप, आपका वालिद, मेरी माँ, ये सब लोग आ सकते हैं, मेरे सास ससुर आ सकते हैं, जो एक घर में कोहैबिट करते हैं, ये सब आ सकते हैं उसके अंदर। और कोई भी, ये सिर्फ ये नहीं है कि हम तो सिर्फ इस तनाजुर में देखते हैं ना कि जी मर्द ने औरत को मारा या मर्द ने औरत को गाली दी, वाइस वर्सा भी तो हो सकता है ना। ऐसे भी केसेस हो सकते हैं ना जहां पर औरत कभी कभार ज्यादती कर जाए किसी वजह से, वट एवर द रीजन में भी, या सास बहू के ऊपर जाते। आपने नहीं देखा है कि घर में औरतों को गैसोलीन डाल के जला दिया गया है? बिल्कुल।
ऐसे भी केसेस देखे ना, ये डोमेस्टिक इन्वायरमेंट के अंदर ये डोमेस्टिक वायलेंस है। घर से बाहर अगर कोई स्टॉक करता है वो इस पे नहीं आएगा, लेकिन मियाँ स्टॉक करता है, मियाँ अपनी बीवी को जोर जबरदस्ती करता है, मियाँ अपनी बीवी के जो राइट्स है उनको मजरू करता है, तो फिर उसके पास ये इख्तियार है कि वो जाके प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू कोर्ट के अंदर पिटिशन लगा सके, एंड द कोर्ट हैज टू टेक कॉग्निजेंस विद इन 7 days। देखिए हमने तो इसके अंदर सारे चेक्स एंड बैलेंसेस और रखे हैं, टाइम फ्रेम भी रखा है। अगर आगे अदालतें जो हैं वो इस पे फैसले ना करें और फिर जो विक्टिम की बजाय सही। जो परपेट्रेटर है उसको रिलीफ देना शुरू कर दे, तो फिर ये हमारा कसूर नहीं है, फिर ये अदालती निजाम का कसूर है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। थैंक Thank यू you सो very मच। much। शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ थी, और ज़ाहिरा है इसलिए भी शर्मिला फारूकी साहिबा से इस हवाले से बात करना ज़रूरी समझा, क्योंकि इस स्टॉकिंग के वर्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, लोग इसको अपने अपने मतलब भी दे रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना जो इस बिल की क्रिएटर हैं उनसे ही पूछ लिया जाए कि इसका एक्चुअली मतलब क्या है। क्योंकि देखें ना, जब पार्लियामेंटेरियंस ऐसे बात करेंगे, पलवशा साहिबा की मैं बात करूंगी एक कि भाई ये क्या है और किस तरह, तो आई थिंक इसको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी जो शर्मिला साहिबा ने इस वक्त आई एम ग्लैड कि ये सेगमेंट हमने किया।